Hello, friends. Welcome all of you to our first session of vocabulary. My name is Ronak Bhargav, and daily I will discuss some important words from daily journals because as you all know, vocabulary is very important and it is imperative for you if you want to boost your reading skills, if you want to score good marks in close test, if you want to score some good marks in synonyms and antonyms which are asked in different competitive exams. For example, if I talk about SSC, there is a huge portion of vocabulary. So for example, idioms and phrases, one word substitution, synonyms and antonyms. So it is asked in SSC because here the weightage of English section is approximately 200 in mains, 50 in the prelims. So you can see a huge weightage is there for English language. So 250 marks is there for SSC. If you go for banking examination, there you will get some good quality close tests. So there also vocabulary is very important for you. If you don't know the exact parts of a speech of a word, if you don't know the uses of that word, just cramming the meaning is not important for you. Until and unless you know the uses of certain words, you are not going to be effective with all those words. And if I talk about NDA, CDS, FK, different defense examinations, so here also English is also important here. And if you are going for any management entrance test or if you are preparing for GAT examination, so English is present everywhere. So my name is Ronak Bhargav and daily I will bring this session for you people. Today I will discuss only 30 words, and if you like the session, if you endorse my effort, because this session is free of cost and this is my first session on YouTube on yoursmehboob.com. So you know about this channel, it is very famous and it is working to help the aspirant from a long time. When I was in New Delhi, when I was preparing for my examination, then I came across this channel and it is really helping all the aspirants. So they have contacted me to design some session for vocabulary. So let's continue the session. आई विल कीप द सेशन बायलिंगुअल. सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं सेशन को मैं रखूंगा. हिंदी में वहाँ पे मीनिंग दिया हुआ होगा, पर वैसे तो हिंदी से मेरा कोई ज़्यादा तालमेल है नहीं, क्योंकि आप अगर हिंदी से इंग्लिश को अगर रटने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हिंदी में जो है ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्चुअल यूज़ जानना है, कोलोकेशन जानना है, जो इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हो. क्योंकि जितने अच्छे एग्जाम्स होंगे, जैसे बैंकिंग की बात कर लो, वहाँ पे उतने सॉलिड क्वेश्चंस होंगे, आपको आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे. एसएससी में जाओगे तो वहाँ आपको इंग्लिश का लेवल इतना अच्छा नहीं होता, वो मतलब कि आप देख सकते हो मॉडरेट लेवल की इंग्लिश होती है. हाँ, पर जिन्हें नहीं आती इंग्लिश अच्छे से, उनके लिए तो वो भी टफ है. पर जो बच्चे मान लो इंग्लिश मीडियम से है या वो अगर अर्बन बैकग्राउंड, अर्बन एरिया से आते हैं, तो उनके लिए चीज़ें आसान है. तो देखिए, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून से डेली मैं आपके लिए न्यू वर्ड्स लेकर आऊँगा, और जो वर्ड्स न्यूज़ हेडलाइंस में होंगे, मैं हेडलाइंस भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा. आज तो मैंने नहीं रखी है, तो हेडलाइंस भी मैं लेकर आऊँगा. बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन को डिजाइन किया है, आपके लिए रीडिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी, क्योंकि वर्ड्स अगर आपको आते हैं तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो, जिसको हम कंप्रीहेंड करना कहते हैं. कंप्रीहेंशन का मतलब क्या है, आप चीज़ को समझ पाओ. ठीक है, तो आपके पास अगर वर्ड पावर अच्छी नहीं है तो वो अच्छा न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस की तो लैंग्वेज चलो ठीक ठाक रहती है, द ट्रिब्यून की भी लैंग्वेज अच्छी है, तो वर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आपको वर्ड पावर अगर वीक है तो वर्ड को याद करना शुरू कर दीजिए. अगर आप कोई भी अच्छा एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो अगर ऑफिसर बनना चाहते हो, इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ठीक है, तो इंग्लिश ही केवल एक मापदंड नहीं है आपके स्किल्स को जांचने का, बहुत सारे और भी मापदंड है जांचने का, पर ये आपके एग्जाम में पूछी जा रही है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए. पहला वर्ड क्या है, देखिए, द फर्स्ट वर्ड इज एफिकेसी. द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन. एफिकेसी का मतलब क्या होता है, कोई चीज कितनी प्रभावी है. फॉर एग्जाम्पल, ये वर्ड मैंने लिया कहाँ से, कोविड-19 की वैक्सीन हाल ही में भारत में लॉन्च हुई है, तो बार बार हर एडिटर जो है एक ही वर्ड को यूज करा, एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन. मतलब वो कितनी प्रभाविक है, वो जो वैक्सीन बनाई है, जो टीकाकरण चल रहे हैं, वो कितनी प्रभावित है, उसके लिए वर्ड यूज होता है. ये एफिशिएंट से वर्ड बना, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, एफिशिएंट आपको पता है ना, तो कोई चीज, इससे आप एफिकेसी याद करो, कोई चीज कितनी प्रभाविक है उसे हम कहते हैं क्या, एफिकेसी कहते हैं. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट. तो आपको पता है कोविड-19 वैक्सीन किस लिए बनाई गई है, कि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार की जाए कोविड-19 से लड़ने के लिए. तो किसी चीज में एबिलिटी कितनी है, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एफिकेसी. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, इफेक्टिवनेस, सक्सेस, प्रोडक्टिवनेस,
पोटेंशियल एंड यूजफुलनेस, नॉट पोटेंशियल, इट्स पोटेंसी। ओके, यूजेस क्या है, देयर इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द एफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे कुछ सिनोनिमस वर्ड भी है और कुछ सिमिलर वर्ड्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में सिनोनिम जरूर होते हैं जिनका मीनिंग सिमिलर है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि वो वर्ड जो है बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके एग्जाम में क्लॉज सिनोनिमस आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल सही तरीके से देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां पे कौन से वर्ड के साथ मैच करता है। एग्जेक्टिव है तो एग्जेक्टिव वो मैच करता है या नहीं है, ठीक है। तो मीनिंग सिमिलर हो सकते हैं, दो वर्ड कभी भी सेम नहीं होते इंग्लिश में, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड है इनफेमस, ठीक है। फेमस आप सबको ही पता है, प्रसिद्ध, जो लोग प्रसिद्ध होते हैं, प्रोमिनेंट जिनको हम कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेमस। इनफेमस अगर सामने लग गया तो ये नेगेटिव बना देता है इसको, ये एक एग्जेक्टिव है। तो मतलब ये किसी के बारे में बता रहा है, किसी की क्वालिटी बता रहा था, एग्जेक्टिव आपको पता है विशेषता बताने का, मींस इट विल क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो जो लोग कुख्यात होते हैं, बहुत ही दुष्ट होते हैं, बुरे होते हैं, जो बदनाम होते हैं गलत कामों के लिए, उनको हम इनफेमस बोलते हैं। वेल नोन और फॉर बैड क्वालिटी और डीड, तो जो लोग गलत काम करते हैं उस काम के लिए फेमस हो तो हम क्या बोलते हैं, इनफेमस बोलते हैं। तो देखिए सिनोनिम वर्ड क्या है, नोटोरियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बार बार आता है। जो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं ना, कल्प्रिट्स, जिनको हम अपराधी बोलते हैं, CULPRITS। आज मैं अपने दूसरे डिवाइस से नहीं पढ़ा रहा, वहां पे मैं आराम से आपको लिख के बता सकता हूं। तो आज पहला सेशन है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, ऐसे हम बेहतरीन सेशन आपके लिए कोशिश करेंगे रोज लेकर आते रहें। डिसरेप्यूटेबल, लेजेंडरी, फेबल्ड एंड फेम, तो ये सारे के सारे वर्ड जो है आपके इनफेमस के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इसके सिनोनिमस वर्ड है। ही इज इनफेमस फॉर हिज डिसऑनेस्टी, तो वो अपनी क्या है, किस चीज के लिए, डिसऑनेस्टी के लिए, वो ईमानदार नहीं है तो उसके लिए क्या है, वो जाना जाता है, बदनाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वेटरन। अब वेटरन क्या होता है, देखिए जो लोग बहुत ही अनुभवी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन है, लता मंगेशकर एक बहुत ही अच्छी गायक है। तो ये क्या है, वेटरन है, बहुत ही, ये क्या है, अनुभवी लोग हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। ए पर्सन, ये आता कहाँ पर, ये वर्ड आता कब है, आप देखिएगा जब भी कोई बड़ा प्लेयर या कोई बड़ा कोई अभिनेत्री कोई भी रिटायरमेंट लेता है तो वहां पे ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जब युवराज सिंह ने रिटायरमेंट लिया, वेटरन वर्ड लिखा हुआ है। MS धोनी, सुरेश रैना ने लिया तो वेटरन लिखा हुआ, क्योंकि ये लोग अनुभवी है, ठीक है। काफी समय तक इन्होंने जो है उस चीज को जो है खेला है या इस चीज के साथ जुड़े रहे हैं, तो उसे हम वेटरन कहते हैं, जो लोग अनुभवी होते हैं। ए पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड, तो एक विशेष किसी क्षेत्र में अगर आपके पास कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है, उसे हम वेटरन कहते हैं। ये वन वर्ड की तरह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ग सर्विंग, एक्सपीरियंस्ड, ऑल हैंड और एडेप्ट आप कह सकते हो। एक और फ्रेज यूज होता है इसके लिए, पास्ट मास्टर, तो वो भी हम अनुभवी लोग के लिए यूज करते हैं। द न्यू players have provided tough competition to the veterans in the field, तो जो नए प्लेयर्स थे उन्होंने, अनुभवी जो प्लेयर्स थे उनको क्या दिया, एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया मैदान में। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, ये आपको PDF वहीं पे मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो, ये टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको PDF समय समय पे, सिर्फ यही नहीं, आपको बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे, स्टडी मटेरियल आपको प्रदान किया जाता है इस टेलीग्राम के एडमिन के द्वारा। तो मैं तो इसका एडमिन नहीं हूँ, तो जो भी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो मैं तो सिर्फ टीचिंग के लिए मैं कुछ अपने वीडियोस इस पर डालूंगा, तो मैं तो इसका एडमिन नहीं हूं। तो इनके एडमिन जो है वो आप सबके लिए जो है बहुत सारा मटेरियल वहां पे रहता है, तो आप वहां से जाकर चीज़ों को आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है, आफ्टर मैथ। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बार बार न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है। अभी इस समय इसलिए चल रहा है क्योंकि आपको पता है 3 फार्म बिल्स जो है सरकार लेकर आई है, और जो किसान है उसका आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आंदोलनकारी उनको क्या कहते हैं, एगिटेटर्स कहते हैं, ठीक है। आंदोलन करने को क्या कहते हैं, एगिटेशन कहते हैं, या प्रोटेस्ट भी कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा वर्ड डेली न्यूज़पेपर से आएगा, कहां पे यूज हो रहा है मैं आपको बता सकता हूं। यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे अगली जो सेशन लाऊंगा ना मैं, यहाँ पे मैं उसका जो है ना कटआउट भी लगा दूंगा आपको। तो अपना काम वो नहीं है कि कोई बुक उठाई और प्रीवियस ईयर की वर्ड लिख दी, नहीं जी, ठीक है ना। मेरे लिए समझ इंपॉर्टेंट है, आपको वर्ड अगर समझ आ गया आपकी रीडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। मैंने भी अपना ऐसे इंप्रूव किया है, मैं चाहूँ तो इस पूरे सेशन को इंग्लिश में ले सकता हूँ। मैं इंग्लिश ट्रेनर हूँ, मैं IELTS के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ साथ के साथ। तो मैं पूरे सेशन को इंग्लिश में लेकर जा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी उतनी अच्छी है जितनी मेरी हिंदी है। पर मैं यहाँ पर किसी को इंप्रेस करने नहीं आया, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि आपको चीज़ें समझ आए। तो मैं अगले सेशन में कोशिश करूंगा कि आपके लिए यहाँ पे जो है ना स्नैपशॉट्स लगा दूं, जिससे क्या कि आप वो हेडलाइन को भी समझ पाओ। तो आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है, किसी चीज़ के परिणाम क्या हो, ठीक है। जैसे द आफ्टर मैथ ऑफ COVID-19, तो कोई अनप्लीजेंट, किसी भी चीज़ का जो इवेंट का जो है अनप्लीजेंट रिजल्ट हो, बुरा परिणाम हो, उसके लिए हम यूज करते हैं आफ्टर
इन्वायरमेंट, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो देखिए, द कंसिक्वेंसेस और आफ्टर इफेक्ट ऑफ ए सिग्निफिकेंट अनप्लीजेंट इवेंट, तो कोई अनप्लीजेंट इवेंट का कोई भी रिजल्ट हो, कोई भी परिणाम हो, उसके लिए हम आफ्टर मैथ यूज करें। जैसे द आफ्टर मैथ ऑफ कोविड-19, बैंकों को बहुत लॉस हो रहा है, एनपीए बन रहा है, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आफ्टर मैथ ऑफ कोविड-19, ये सारे किसके, कोविड-19 के परिणाम है। तो सारे के सारे कैसे नेगेटिव है। तो देखिए, रिपरकशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, रिपरकशन, आफ्टर इफेक्ट, रिजल्ट, तो ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे वर्ड है, आप इसको देख सकते हो। रिपरकशन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। अ न्यू स्कूल बिल्डिंग वाज बिल्ट इन द आफ्टरमेथ ऑफ फ्लड, तो फ्लड के बाद, फ्लड के परिणाम क्या हुआ, एक नई स्कूल की बिल्डिंग बनाएगी, क्योंकि वो शायद फ्लड में क्या हुई, ढह गई या बह गई। चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ड पे, हवोक। हवोक का मतलब क्या है, ये एक नाउन है। जब भी कहीं पे क्या हो, तबाही मच जाती है या बहुत ज्यादा विनाश होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हावोक। एक वर्ड लिखा था प्ले हावोक, मतलब कहीं पे नुकसान पहुंचाना या बहुत ज्यादा तबाही मचाना, टू प्ले हावोक। तो ध्यान रखिएगा, ये एक ईडियम है। तो इसका मीनिंग क्या है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। वाइड स्प्रेड मतलब काफी लार्ज जगह, मतलब बहुत लंबा इंपैक्ट पड़ना या काफी मतलब क्षेत्र में इंपैक्ट पड़ना, ठीक है। तो देखिए सिनोनिम वर्ड क्या है, डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज या डेसोलेशन, रियूनेशन, रियून, डाइजेस्टर, कैटास्ट्रॉफी, ये सारे के सारे क्या है आपके ये सिनोनिमस वर्ड है जो हावोक के लिए आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, द हरिकेन रिप्ड थ्रू फ्लोरिडा कॉजिंग हावोक, तो ये देख सकते हो आप, हरिकेन की वजह से क्या हुआ, ये फ्लोरिडा में काफी ज्यादा उसने तबाही मचाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से इस वर्ड को यूज मैंने किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है किसी को आदेश देना, ठीक है, पर ये जब न्यूज़पेपर में यूज किया गया था, वहां पे किस सेंस में यूज किया गया, ये ध्यान रखिए, एग्जेक्टिव है, किसी की विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की। मैंडेटरी का मतलब होता है कोई चीज अनिवार्य या बहुत ज्यादा जरूरी हो। तो देखिए, रिक्वायर्ड बाय लॉ और मैंडेट या कंपलसरी कोई भी चीज हो, जैसे इट इज मैंडेटरी फॉर यू to hold a valid license with you when you are driving. It is mandatory for you to take your I card when you are going for the examination. मतलब ये आपके लिए जरूरी है, कंपलसरी है। तो देखिए synonymous words obligatory, compulsory, binding, required, inescapable, unavoidable और requisite। तो ये सारे के सारे सिमिलर मीनिंग है, सिमिलर वर्ड्स है जो आप इसके लिए यूज कर सकते हो। Wearing helmet was made mandatory for pedal cyclists। तो देख सकते हो, हेलमेट पहनना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया। चलिए अगला वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड है डाइल्यूट। अब देखिए, डाइल्यूट का मतलब होता क्या, बेसिकली ये तो होता है लिक्विड को जब भी आप लिक्विड को पतला करने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डाइल्यूट द सॉल्यूशन। कुछ आपने उसमें मिलावट कर दी, ठीक है, तो उसको आप डाइल्यूट करते हो। पर यहाँ पे किस सेंस में यूज हुआ है, आप देख सकते हो, अभी हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रम्प जो है कुर्सी से उनको उतारा गया है, वो चुनाव हार गए थे, तो आपको पता है उस कारण से क्या है, बहुत ज्यादा उथल पथल वहां पे मची हुई है, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा किस तरीके से विद्रोह कर रहे थे, तो वहां पर ये उस आर्टिकल में यूज था डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कमजोर करना। उन्होंने वहां के लोकतंत्र को क्या किया, कमजोर किया। इफ समवन और समथिंग डाइल्यूट अ बिलीफ, क्वालिटी और वैल्यू, दे मेक इट वीकर और लेस इफेक्टिव। तो डाइल्यूट का मतलब आपको इंग्लिश आपने मीनिंग देख लिया, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हिंदी मीनिंग इसका कमजोर करना है, मीन्स टू रिड्यूस, टू वीकन, टू डिमिनिश। तो इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज को कमजोर करने की जब कोशिश की जाती है, वहां पे वर्ड डाइल्यूट यूज किया जाता है। वैसे तो ये लिक्विड के साथ ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। सीरियस अटेंशन इज बीइंग गिवन टू डायलेटिंग द वैल्यू ऑफ पर्सनल टैक्स अलाउंसेस। तो आप देख सकते हो पर्सनल टैक्स अलाउंसेस, ठीक है। तो ये टैक्स की टर्म है, अगर किसी को टैक्स की नॉलेज है तो वो समझ सकता है इसको, क्या होते हैं अलाउंसेस, क्या होते हैं परक्विजिट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जैगरेटेड। एग्जैगरेटेड का मतलब क्या होता है, ये एक एग्जेक्टिव है, ठीक है। एग्जेक्टिव है तो देखते, किसी भी चीज को जब आप बढ़ा चढ़ाकर कहते हो तो वो उसे क्या बोलते हैं, एग्जैगरेटेड कहते हैं। ओवरस्टेट, मेड टू सीम ग्रेटर और मोर इंपॉर्टेंट दैट इट इज रियली इज, या ओवरडन या एक्सेसिव इसका मीनिंग है। तो जब भी आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहते हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एग्जैगरेटेड द, ऐसे कहते हैं डोंट एग्जैगरेट द मैटर, मतलब बढ़ाओ इस मैटर को ना, ज्यादा खींचो मत, ज्यादा बढ़ाओ चढ़ाओ मत, ठीक है। तो देखो सिनोनिम वर्ड क्या है, ओवरस्टेटेड, इन्फ्लेटेड, मैग्नीफाइड, एम्पलीफाइड, एग्रेंडाइज्ड, एक्सेसिव। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, यूज आप कर सकते हो। द फिशरमैन एग्जैगरेटेड द साइज ऑफ द फिश ही हैड कॉट। तो क्या किया, कोई फिशरमैन ने मछली पकड़ी, वो क्या कर रहा था, उसकी साइज को एग्जैगरेट, मतलब बढ़ा चढ़ा के बता दो मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी। तो इस सेंस में यहाँ पे यूज हुआ। तो कोई भी आपका फ्रेंड कोई चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है ना, वर्ड यूज करता है एग्जैगरेट, ठीक है। स्पोकन भी ऐसे इंप्रूव होगी, अगर स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हो ना भाइयों, तो अच्छे वर्ड होंगे तो स्पोकन अपने आप मुंह से निकलेगी। आपके पास अप्रोप्रिएट वर्ड होने चाहिए, आपको कहाँ पे क्या बोलना है, ठीक है। तो हर वर्ड जो है ना, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी एक अगर मीनिंग सेम है तो वो वर्ड कहीं पे भी आप उसको चिपका दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी रिटर्न को इंप्रूव करना चाहते हो, तो वर्ड का सही यूजेस जानो, ठीक है। उसके
उसको सेंटेंस में यूज करना जानो, अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, फिर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सीमित रह जाओगे, और वो भी कौन से हल्के लेवल के। अगर अच्छे लेवल के एग्जाम में जाओगे वहां तो भैया यूजेस से ही खेल होगा, क्योंकि आपको पार्ट्स पता होनी जरूरी है अगर आप बैंकिंग जैसे क्लोज टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। और ये आपको पता ही है, बाद वाले टेस्ट तो बहुत हाई फाई लेवल के टेस्ट होते हैं ये, ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत ही, नाम ही काफी है। चलिए आगे चलते हैं। एक अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पाउसिटी। काफी बार एसएससी में पूछा गया, इसकी मतलब ये है नाउन, इसका मतलब होता है कमी होना, ठीक है। तो आप इसको निमोनिक्स की तरह, ट्रिक की तरह याद कर लीजिए। पाव की सिटी में क्या हो गई, कमी हो गई। पाव होता है ना जो पाव भाजी के साथ, पाव की सिटी में कमी हो गई, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो। द प्रेजेंस ऑफ समथिंग ओनली इन स्मॉल और इनसफिशिएंट क्वांटिटी और अमाउंट, या स्कार्सिटी आप कह सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पाउसिटी, ठीक है। स्कार्सिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सामान्य सा वर्ड है, इसके पीछे भी सिटी है और पाउसिटी के पीछे भी सिटी है, तो वर्ड को कनेक्ट कर लीजिए, बहुत सारे वर्ड आप ऐसे ही याद कर लोगे। तो स्कार्सिटी, स्पार्सनेस, द अर्थ एक अच्छा वर्ड है, शॉर्टेज, पॉवर्टी, इनसफिशिएंसी, ये सारे के सारे इसके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स है जो आप इसको यूज कर सकते हो। द कल्प्रिट्स एस्केप पनिशमेंट ड्यू टू पाउसिटी ऑफ एविडेंसेस, मतलब जो कल्प्रिट थे, जो अपराधी थे, कल्प्रिट आपको याद रखना है, कल्प जो है ना अपराध से जुड़ा वर्ड होता है, तो कल्प्रिट हम अपराधी को कहते हैं। एस्केप मतलब वो क्यों बच गए पनिशमेंट से, क्योंकि पाउसिटी मतलब कमी थी किस चीज की, एविडेंसेस की। एविडेंस का मतलब सबूतों की कमी थी, जिस कारण से क्या है वो अपराधी बच गए, उनको क्या है सजा नहीं हुई। चलिए आगे चलते हैं, अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जब हानिकारक हो तो उसमें क्या कहते हैं, डेट्रीमेंटल। कॉजिंग हार्म और डैमेज, सब देखते हैं हार्म, डैमेज, इंजरी, सारे के सारे क्या है ये सिनोनिमस वर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो आज के टाइम में हम कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वो क्या है, डेट्रीमेंटल फॉर आवर अपकमिंग जनरेशन। हम पानी का गलत यूज करते हैं, हम इतना ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करते हैं, हम अपने पर्सनल गाड़ी में जाते हैं, इट इज डेट्रीमेंटल फॉर द एनवायरमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे जो है तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल जो कर्जा ले लेते हैं बैंक से, पैसा नहीं दे रहे, तो वो क्या है, बैंक के लिए हानिकारक है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, द डिफॉल्टर्स आर डेट्रीमेंटल फॉर द बैंक बैलेंस शीट, तो ये उनके लिए क्या है, हानिकारक है। द रिक्वायरमेंट दैट रनर्स वेयर शूज फॉर द रेस वर्क टू हिज डेट्रीमेंट सिंस ही हैड यूज्ड फॉर रनिंग बेयरफुट। ठीक है, तो चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। ये वर्ड जो है ना कोविड में बहुत ज्यादा आया। अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है जो चीज पहले कभी ना हुई हो, बहुत ही अनोखी हो, बेमिसाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनप्रेसिडेंटेड कहते हैं। प्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कोई चीज पहले होना, ठीक है। तो कोई चीज प्रेसिड होती है ना, दिस विल प्रेसिडेड बाय दैट, ठीक है। तो आप जैसे हम कहते हैं कि ए सब्जेक्ट विल बी प्रेसिडेड बाय अ वर्ब, तो मतलब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब से पहले आएगा, तो इसके पहले आपने अन लगा दिया तो ये इसका उल्टा मीनिंग बना, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जो चीज अनोखी हो, बेमिसाल हो, इससे पहले कभी ना हुई हो, जैसे कोविड-19। हैविंग नो प्रेसिडेंट, नेवर डन और नॉन बिफोर, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी डेफिनेशन है। विदाउट प्रेसिडेंट, नोवल, अनएग्जाम्पल, अनपैरेलल, ये सारे के सारे इसके सिमिलर मीनिंग है जो आप यूज कर सकते हो। द गवर्नमेंट टुक द अनप्रेसिडेंटेड स्टेप्स ऑफ रिलीजिंग कॉन्फिडेंशियल कॉरेस्पेंडेंस, तो आप देखते हो किस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हो। अनप्रेसिडेंटेड मतलब कोई अनोखा कदम सरकार ने ले लिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला वर्ड है, अगला वर्ड है दोस्तों एगिटेशन। ये फिर मैंने वैसे आर्टिकल से लिया जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उससे जुड़े बहुत सारे विशेषज्ञ जो है अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं न्यूज़पेपर में। तो ये एक नाउन है, TION से जो भी वर्ड एंड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो उत्तेजना या आंदोलन को क्या कहते हैं, हम एगिटेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मीनिंग है। उस आर्टिकल में किस तरीके से यूज हुआ तो वही बता रहा हूँ, वहां पे यूज हुआ था वरी या एंजाइटी, मतलब कोई बहुत ज्यादा परेशान हो उसके लिए। तो स्टिमुलेशन, एक्साइटेशन, स्टिमुलस, प्रोवोकेशन, टर्मोइल, अफेबल और हुल्ला बोलो, ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिमस वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो। ही राइड होम इन द स्टेट ऑफ एगिटेशन, मतलब वो घर क्या है, परेशानी में घर अपने लौटा, ठीक है। एगिटेटर्स जो होते हैं, जो लोग आंदोलनकारी, जो किसान, वहां पे जिनके लिए एक वर्ड हम और यूज करते हैं, पीजेंट, किसानों के लिए, PEASANT, तो आप इस वर्ड को भी यूज कर सकते हो, किसके लिए, किसानों के लिए, ठीक है। और एक वर्ड यूज होता है एग्रेरियन, एग्रेरियन, AGRARIAN, ये भी किससे, खेती से जुड़ा वर्ड है एग्रेरियन, आपको ध्यान में रखना है। एग्रेरियन क्राइसिस मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ा क्राइसिस। तो मैं आपको सारे वर्ड जो है कनेक्ट करवाता जा रहा हूँ एक एक करके, जिससे क्या है कि आप अच्छे से अपनी जो है डिक्शनरी को दिमाग में बिठा लो। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है इंटिमिडेशन। देखिए फिर से TION से एंड हुआ, ये वर्ड क्या है, एक नाउन है। इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी को धमकी देना, किसी को डराना। तो कौन डरा रहा है किसानों को,
ठीक है, किसानों को कौन डरा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट डराने की कोशिश कर रही है। टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन यूजुअली इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग दैट यू वांट देम टू डू। तो सरकार क्या कर रही है? इंटिमिडेट कर रही है किसको? किसानों को कर रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो 3 कानून को मान ले, ठीक है। वो एमएसपी को क्या करना चाहती है? स्क्रैप करना चाहती है, ठीक है, एबॉलिश करना चाहती है। तो एबॉलिश भी वर्ड मैंने रखा है। तो देखिए सिनोनिमस वर्ड क्या है? फ्राइटनिंग, मैनेकिंग, किसी के लिए खतरा बन जाना, टेरिफाइंग या स्केयरिंग। स्केयर मतलब किसको? डराना, ठीक है, या स्केयर का मतलब होता है डरना भी। They were intimidated into accepting a pay cut by the threat of losing their job। ठीक है, तो देखो क्या है, आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, वो क्या है? अपने एम्प्लॉयज को इंटिमिडेट कर रहे थे कोविड-19 में। क्या कि वो क्या करे? पे कट को, मतलब सैलरी की कटौती को क्या कर ले? मान ले, एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो क्या होगा? उनकी नौकरी चल जाएगी, दे विल लूज देयर जॉब। तो आप देखते हैं किस तरीके से मैंने इसको बेहतरीन तरीके से सेंटेंस में यूज किया है। यूजेस पता होगा तो वर्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो गया, सॉरी, ठीक है, ये इंटिमिडेटेड ये वर्ब की तरह यूज कर दिया मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलो कोई बात नहीं, कभी कोई गलती हो जाती है। ये देखिए सेडिशन, सेडिशन का मतलब क्या होता है? राजद्रोह, नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, राजद्रोह, जो सरकार के खिलाफ बोले, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे हुआ है? ऐसा हमारे ममता बनर्जी जी करती है ना। आप देखते हैं अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे आप सेडिशन वर्ड आपको उन आर्टिकल्स में देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, आपको पता है, अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा ही काम किया जिससे क्या वहाँ पे उथला पुथली मची हुई है। तो लैंग्वेज और बिहेवियर डेट इज इंटेंडेड टू परसुएड अदर पीपल टू अपोज द गवर्नमेंट। तो जब आप किसी को उकसा रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसे क्या कहते हैं? सेडिशन कहते हैं। सेडिशन के चार्जेस लगे थे, ये पाकिस्तान के क्या नाम था उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनको जो है जेल भी हुई उस चीज के लिए ना, उसको सजा सुनाई थी सेडिशन चार्जेस के लिए। वहां पे वर्ड हुआ था ट्रीशन, ठीक है यार, उसका नाम मुझे क्या, तो नाम नहीं मुझे याद आ रहा उनका, वो नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा। वो जनरल भी रहे हुए हैं वहाँ के आर्मी के, फिर वो वहाँ पे जो है पाकिस्तान के ही वो जो है चीफ रहे हुए हैं, और वो फिर पाकिस्तान में वो राजनीति से भी जुड़े हुए थे। उनका मुझे ना परवेज मुशर्रफ शायद नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो उन पे ये चार्जेस लगे थे। तो देखिए इसके सिनोनिम वर्ड क्या है? ट्रीजन, सेडिशन, रिवोल्ट, इंसर्जेंसी, प्रोवोकेशन, रिबेलियन, इंसरेक्शन, म्यूटनी, इंसर्जेंसी या सिविल डिसऑर्डर, सारे के सारे इसके सिमिलर मीनिंग है, जो आप अलग तरीके से इसको यूज कर सकते हो अपने सेंटेंसेस में। यूजेस क्या है? ही हिमसेल्फ वाज ट्राई टू सेडिशन एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल। तो उसने क्या किया? उसने राजद्रोह करने की कोशिश की, फिर उसे क्या हो गया? ही वाज सेंटेंस टू 10 years इन जेल, मतलब उसको 10 साल की सजा हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है? इन्फिल्ट्रेट, काफी बार यूज होता है, आप देखते हो जम्मू एंड कश्मीर में उधर से क्या घुसते हैं? मिलिटेंट घुसने की कोशिश करते हैं, जो आतंकवाद होते हैं। चाइना क्या कर रहा है? इन्फिल्ट्रेट कर रहा है भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी पे। तो आप देख सकते हो उसका मतलब क्या होता है? इन्फिल्ट्रेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कहीं पे घुसपैठ करने की कोशिश करना। तो मीनिंग देखिए, टू सीक्रेटली बिकम पार्ट ऑफ ए ग्रुप इन ऑर्डर टू गेट इन्फॉर्मेशन और टू इन्फ्लुएंस द वे दैट ग्रुप थिंक और बिहेव। तो जब आप कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट वर्ड यूज किया जाता है। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो है ये कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी से ली गई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है इसकी डेफिनेशन कुछ और मीनिंग दे रही हो, पर ये किस सेंस में यूज हो रहा है आर्टिकल में, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है कहीं पे घुसपैठ करना, कहीं पे भी आप कर रहे हो सीक्रेटली, बिना बताए, बिना कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ गलत काम करने के लिए। तो देखिए इंट्रूजन, ऑब्स्ट्रक्शन, पेनिट्रेट या इन्वेड, ये सारे के सारे वर्ड जो है इसके लिए यूज होते हैं, घुसपैठ करना, ठीक है। एक वर्ड होता है ट्रेसपासर, वो होते हैं घुसपैठिए जो करते हैं। तो ट्रेसपासर क्या है? नाउन है। आपको कंटोनमेंट जो एरिया होते हैं ना, तो वहां पे ये वर्ड काफी बार दीवारों पे ना कैंट में लिखा होता है, ट्रेसपासर आर नॉट अलाउड। तो इस तरीके से जो है ये वर्ड लिखे। ट्रेसपासर वो होते हैं जो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो नाउन है। टू इन्फिल्ट्रेट इनटू एनिमी टेरिटरी, ए जर्नलिस्ट मैनेज टू इन्फिल्ट्रेट द पावरफुल ड्रग कार्टेल। तो आप देख सकते हो जर्नलिस्ट ने क्या किया? इन्फिल्ट्रेट मतलब घुसपैठ करने में वो क्या हो गया? सक्षम हो गया। कहाँ पे? कोई ड्रग कार्टेल के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है? प्रॉफर। ये भी एक अच्छा वर्ड है। तो आप देख रहे हो कि इस समय सरकार क्या है? सरकार किसानों को कह रही है कि भैया बात मान लो, प्रस्ताव रख रही है, ऐसे कर ले। किसान कहते हैं हम नहीं मानने वाले भैया, सारे के सारे कानून जो है ना वापस लीजिए, रिपील द लॉ, एब्रोगेट द लॉ। वो कहते हैं पूरा खत्म करो कानून, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो प्रॉफर का मतलब क्या है? ये एक वर्ब है, इसका मतलब है किसी को प्रस्ताव करना या निवेदन करना। सरकार किसानों को कह रही है देखिए बीच का रास्ता निकाल देते हैं, कुछ चीजें आप हमारी मानो, कुछ चीजें हम आपकी मानते। किसान भाई क्या कहता है कि नहीं, आप सारा लॉ ही जो है ना
काला कानून है उसको हटाओ। तो देखिए मीनिंग क्या है, होल्ड आउट समथिंग टू समवन फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो देखिए सरकार क्या करी है, ये देखिए सिनोनिमस वर्ड ऑफर, टेंडर या सबमिट, ये सारे के सारे क्या इसके सिनोनिमस वर्ड है। ही प्रॉफर्ड हिज रेजिग्नेशन, तो उसने क्या किया, अपने रेजिग्नेशन का क्या किया, प्रस्ताव रखा। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड बहुत ही सामान्य सा वर्ड है, कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, देखिए कंडेम एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी की आलोचना करना, किसी की बुराई करना, ठीक है, किसी के बारे में बुरा भला कहना। टू क्रिटिसाइज इज मॉरली रॉन्ग और इविल, तो कोई आप गलत काम करोगे तो लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, तो उसको हम कंडेम कहते हैं। तो सिनोनिमस वर्ड क्या है, सेंसर। ध्यान रखिएगा ये सेंसर वो नहीं है CENSOR, वो सेंसर अलग होता है, ठीक है। एक सेंसर बोर्ड वाला भी होता है जो अप्रूवल देता है सिनेमा जो मूवीज बनती है। तो इसका सिनोनिमस होती है क्रिटिसाइज, डिनाउंस, रिवाइल और कास्टिगेट। एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, काफी बार SSC में पूछा गया है, कास्टिगेट, ठीक है। अगर आप जो है ना कास्ट के बारे में देखिए, कास्ट और गेट दो वर्ड है यहाँ पे, कास्टिगेट। तो कैसे याद करो, कास्ट होते हैं ना, कास्ट जो जाति होती है, और गेट। तो अगर आप लोगों की कास्ट पूछ पूछ के उनको गेट में एंट्री दोगे ना, तो लोग क्या करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। इसे कहते हैं निमोनिक्स। तो ध्यान रखिएगा किसी की भी कास्ट पूछने की गलती ना करे, आने दे जो आ रहा है, ठीक है। तो इसको ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक के थ्रू वर्ड को याद कीजिए, ठीक है। एवरीवन कंडेम्ड हर फॉर बीइंग क्रूएल टू द चाइल्ड, तो वो क्या थी, बच्चों के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं किया, ठीक है, बहुत ही रूखा बर्ताव किया, तो लोगों ने क्या किया, उसकी आलोचना की। अगले वर्ड पे चलिए, प्रूडेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार SSC ने पूछा। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान या समझदारी भरा। एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थॉट्स फॉर द फ्यूचर, जो लोग बहुत ही समझदारी से कोई डिसीजन लेते हैं, भविष्य के बारे में सोच के, उसे हम प्रूडेंट कहते हैं। तो सिनोनिमस वर्ड क्या है, देखिए जुडिशियस, इसको आप जुडिशरी से कनेक्ट कर सकते हो। जो जुडिशरी के लोग होते हैं, जो वकील होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं ना, तभी तो वो देख दो इतनी बड़ी उसको कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो वो समझदार है। तो हर किसी को थोड़ी जुडिशरी की कुर्सी बैठता है। जुडिशियस, सैगेसियस, जो लोग साग खाते हैं ना, सरसों का साग खाते हैं, वो कैसे होते हैं, सैगेसियस होते हैं, मतलब बुद्धिमान होते हैं। तो आप ऐसे इसको सैगेस से इसको याद कर सकते हो। श्रूड और सेंसिबल, तो ऐसे आप सारे वर्ड याद, दो वर्ड मैंने आपको बता दिए कैसे आपको याद करने हैं। तो 5-6 निमोनिक्स मैंने आपको बता दी, जो जो बीच बीच में आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। नो प्रूडेंट मनी मैनेजर वुड ऑथराइज अ लोन विदाउट फर्स्ट नोइंग इट्स पर्पस, ठीक है। तो नो प्रूडेंट मनी मैनेजर मतलब कोई भी समझदारी भरा जो है मैनेजर होगा ना, वो कभी भी आपके लोन का अप्रूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको तब तक नहीं पता चले कि आप पैसा का उपयोग कहां करने वाले हो, किस काम के लिए आप लोन लें, तब तक वो क्या है, प्रूडेंट मतलब जो बुद्धिमान या समझदार मैनेजर होगा, वो उस लोन को अप्रूव ही नहीं करेगा, ऑथराइज ही नहीं करेगा। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। ये वर्ड कहां से मिला, ये मिला, आप देख सकते हो, परसों भारत ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, भारत के सभी प्लेयर फट्टर हो चुके थे, तब भी दे प्लेड वेरी वेल, ओके, सो दे गिव अ वॉलर परफॉर्मेंस देयर। तो इसका स्टूपेंडस का मतलब क्या होता है, एग्जेक्टिव, कोई चीज बहुत ही इंप्रेसिव होना। तो आपने देखा भारत ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो स्टूपेंडस वर्ड उसी आर्टिकल में लिखा हुआ था। तो कोई भी आश्चर्यजनक या कुछ ऐसा काम करो जो बहुत ही अच्छा हो, अमेजिंग हो, मतलब लोग बहुत मतलब ना उस चीज को लेके मतलब हक्का बक्का हो जाए, तो ऐसा क्या कर दिया, उसको कहते हैं स्टूपेंडस। एक्सट्रीमली इंप्रेसिव, तो देखिए सिनोनिमस वर्ड है अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टोनिशिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या रिमार्केबल। तो कोई आप ऐसा अद्भुत काम कर दो ना, उसको क्या कहते हैं, स्टूपेंडस। तो भारत ने अद्भुत काम ही किया ना, लास्ट डे में टेस्ट मैच के अंतिम घंटे में जाके टेस्ट मैच को जीता, और वो भी कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। और जबकि भारत की टीम सबसे ज्यादा इंजूर्ड थी, भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 36 रन पे ऑल आउट हुई थी पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद ऐसी रिकवरी करना और उस श्रृंखला को जीतना बहुत बड़ी बात थी। तो स्टूपेंडस वर्ड याद कीजिए, बहुत ही एक जो है ये कॉमन वर्ड नहीं है, अनकॉमन वर्ड है, और न्यूज़पेपर में मैंने काफी कम देखा है इस वर्ड को, तो आप इसको याद कर सकते हो। स्टूपेंडस डिस्प्ले ऑफ टेक्निक, तो देखिए आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटिव। प्लेंटिव का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत दुखपूर्ण होना, तो उसको क्या कहते हैं, प्लेंटिव बोलते हैं। ये एक एग्जेक्टिव है, साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल, तो बहुत ज्यादा कोई दुखपूर्ण कोई चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिव बोलते हैं। तो देखिए मॉर्नफुल, सैड, विस्टफुल, डॉलफुल, पैथेटिक, पिटीफुल, पीटीएस एंड सोरोफुल, ये सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिमस वर्ड है जो आप इसको यूज कर सकते हो। तो देखिए आप ये मैंने ए प्लेंटिव क्राई, तो बहुत दुखद भरा क्या है, रोना, तो उसको मैंने कैसे यूज किया। अगला वर्ड है लेमेंट। अब लेमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए लेमेंट का मतलब होता है रोना या किसी को शोक प्रतीत करना, ये एक वर्ब है। टू मोर्न अ पर्सन लॉस और डेथ, तो जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पे ये वर्ड आपको देखने को न्यूज़पेपर में मिलेगा, लेमेंट, ठीक है। किसी की एक्सीडेंट हो गई, कोई शहीद हो गया, तो लेमेंट वर्ड आपको बार बार वहां पे देखने को मिलेगा जब आप शोक प्रतीत कर रहे हो किसी के खिलाफ, विलाप या रोना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मॉर्न, ग्रीव, सोरो, वेल, वीप, क्राई, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके सिनोनिमस वर्ड है। ही वाज लेमेंटिंग द डेथ ऑफ हिज इन्फेंट डॉटर, इन्फेंट होते हैं बच्चों को हम कहते हैं, ठीक है। तो छोटी उसकी बच्ची के मौत की वजह से क्या है, वो रो रही थी, शोक प्रतीत कर रही थी। अगला वर्ड है डेप्राइवेशन, जब कोई किसी चीज से वंचित रह जाए, ठीक है ना। आपको पता है भारत में बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बहुत सारे लोग चीजों से वंचित रह जाते हैं, तो वर्ड होता है डेप्राइवेशन, TION से एंड हो रहा है, नाउन है। द डैमेजिंग लैक ऑफ मटेरियल बेनिफिट कंसिडर्ड टू बी बेसिक नेसेसिटी इन ए सोसाइटी, तो जो चीज आपके लिए बहुत ही बेसिक हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, ठीक है,
इसका रहन जाए। अगर आपको वो चीज़ें ना मिले क्या बोलोगे? डेप्राइवेशन। तो देखिए पॉवर्टी, इम्पोवरिशमेंट, पेनुरी, प्राइवेशन, हार्डशिप और डेस्टिट्यूशन। तो देखिए डेस्टिट्यूशन वर्ड भी काफ़ी बार एसएससी ने पूछा है। हार्डशिप वर्ड जो है काफ़ी बार न्यूज़ पर यूज हुआ कोविड-19 के बीच, दैट द बिजनेसमैन आर फेसिंग द हार्डशिप ऑफ लॉसेस। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को देखिए, वर्ड का यूजेज जानना जरूरी है, सिर्फ वर्ड को रटना आपके लिए जरूरी नहीं है। लो वेजेस मीन दैट 3.75 मिलियन पीपल सफर सीरियस डेप्राइवेशन। तो आप देखिए इसको समझ गए आप होंगे कि क्या इसका मतलब था। अब एक नया वर्ड और मिला मुझे कल के न्यूज़पेपर में, एनकोमियम। एनकोमियम का मतलब क्या होता है? ये एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है जब आप किसी प्रशंसा कर रहे हो, ठीक है। गुणानुवाद, ये मुझे भी नहीं पता, ये हिंदी मीनिंग इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया जो मुझे मिला, ठीक है। तो जब किसी का कुछ ऐसा लिखते हो या प्रशंसा करने की कोशिश करो, उसे हम कहते हैं एनकोमियम। तो ये वर्ड भी वहीं पे मिला था मुझे जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज भारत जीती, तो उसके लिए कल आर्टिकल आया था द हिंदू में, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन और समथिंग हाईली। तो बहुत ज्यादा किसी की प्रशंसा करना, भारत ने काम ऐसा किया, तो इनकोमियम, तो ये वर्ड आप याद करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। तो देखिए यूलॉजी, एक्कोलेड, ट्रिब्यूट, टेस्टिमोनियल, प्रेज या एक्लम, ये सारे के सारे क्या है? इसके सिनोनिमस वर्ड है, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो। ये देखिए पीएन, ठीक है, पेने, पेने गायरिक, ठीक है। ये मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक करके बताऊंगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आ रही है, पेनेजायरिक होगा या पेनेगायरिक होगा, ठीक है। और ये है यूलॉजी, ठीक है। एक एक्सट्रोल भी वर्ड होता है, एक्सट्रोल का मतलब भी प्रशंसा करना होता है, ठीक है। तो आपको सारे के सारे वर्ड याद रखना है। आपको कोई भी वर्ड एग्जाम में मिल सकता है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग उसको मैच करना है। एनकोनियम बाय द प्रेसिडेंट ग्रेटेड द रिटर्निंग हीरो। तो आप देख सकते हो एनकोनियम बाय द प्रेसिडेंट ग्रेटेड द, तो जो प्रशंसा किसने की? प्रेसिडेंट ने की, किसकी? द रिटर्निंग हीरो। चलिए अगला वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है? एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट का मतलब क्या है? जब आप कोई चीज बहुत ही साफ सुथरे तरीके से एकदम बिल्कुल क्लियरली बोलो, ठीक है, स्पष्ट तरीके से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलोक्वेंट बोलते हैं। एन एलोक्वेंट स्पीच, तो मतलब बहुत ही स्पष्ट तरीके से कुछ देना। तो फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, सिल्वर टंग, परसुएसिव, ल्यूसिड, ये सारे के सारे क्या है? एलोक्वेंट के सिनोनिमस सिमिलर मीनिंग है। सी मेड एन एलोक्वेंट अपील फॉर एक्शन। एलोक्वेंट मतलब बहुत ही, मतलब उसने एक्शन ले क्या? स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया किस चीज के लिए? अपील, एक्शन लेने के लिए। द पिक्चर वेर एन एलोक्वेंट रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ द वोल्केनो। तो आप ये देख सकते हो। तो कोई भी चीज बहुत क्लियर हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलोक्वेंट कहते हैं। एक वर्ड होता है एलिगेंट, उसका मतलब होता है अच्छा। योर इंग्लिश, योर स्पोकन इंग्लिश इज एलिगेंट, उसका मतलब है अच्छा, ELEGENT। तो एलिगेंट वर्ड का मीनिंग कुछ और है, यह है एलोक्वेंट। तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं कंफ्यूजिंग पेयर का सेशन भी लेकर आऊंगा, कि जिससे क्या है कि आप पूरी तरीके से, आपको वोकैबुलरी की जो भी डोज चाहिए, अगर आप चाहते हो कॉमन एरर के क्वेश्चंस में कराऊं आपको जो एसएससी में पूछे गए हैं, तो हम आपको वो भी करवाएंगे। आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, कैसा आपको लग रहा है। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, आपको वो भी देने को तैयार है। अगर आप कहते हो कि सर सिर्फ आप हमें मीनिंग बताइए, हमें और कुछ नहीं जाना, तो मैं आपको मीनिंग भी सिर्फ बता सकता हूँ वर्ड के बारे में, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आगे देखिए अगला वर्ड है एब्रोगेशन। काफी बार वर्ड यूज हुआ, सबसे पहले ज्यादातर ये वर्ड तब यूज हुआ था जब धारा 370 को सरकार ने खत्म किया था। एब्रोगेशन, एब्रोगेशन वहां पे यूज हुआ। काफी बार इस वर्ड को एसएससी ने ही पूछा, तो ध्यान रखिए किसी भी चीज को जो है खंडन करना, उसको हम क्या कहते हैं? एब्रोगेशन कहते हैं। ये नाउन है, TION से एंड हो रहा है। द एक्ट ऑफ फॉर्मली एंडिंग ए लॉ, एग्रीमेंट और कस्टम। तो किसी भी कानून को आप पूरी तरह से खत्म कर दो, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्रोगेशन। तो देखिए इसका सिनोनिमस वर्ड क्या है? रिपील, एनलमेंट या एबोलिशमेंट। ये तीनों के तीनों वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही वर्ड काफी बार पूछे गए हैं। ही फाइल्ड फॉर बैंकरप्टी व्हिच परमिटेड द एब्रोगेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसने क्या है? बैंकरप्टी मतलब दिवालिया के लिए उसने क्या किया? याचिका दायर की। व्हिच परमिटेड द एब्रोगेशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सारे के सारे उसके साथ उसे क्या हो गया? एब्रोगेट हो गया, मतलब खत्म हो गए कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एन एब्रोगेशन ऑफ द एग्रीमेंट एंड आई एम वेरी सैड अबाउट इट। तो ये क्या है? ये जो है एग्रीमेंट का जो है ये एग्रीमेंट जो है खत्म हो रहा है, उसके लिए मैं क्या हूं? बहुत ही ज्यादा क्या हूं? सैड हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा उदास हूं। अगला वर्ड देखिए हैरेंगे। हैरेंगे क्या है? एक वर्ब है, जब कोई भी जो नेता है ना किसी ऑपोजिशन वाला, वो क्या देता है? कुछ उत्तेजक भाषण देता है या कोई प्रभावशाली भाषण देता है, जिसने बुरा बोला वो कह रहा है, ठीक है, बहुत ही लंबे चौड़ा भाषण देता है, गलत कुछ बोलना या किसको उकसाने की कोशिश करता है, उसको हम हैरेंगे कहते हैं। लेक्चर समवन एट लेंथ इन एन एग्रेसिव एंड क्रिटिकल मैनर। तो बहुत ही एग्रेसिव होकर जो है भाषण देते हैं ना, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले करते हैं, वहां पे वर्ड होता है हैरेंगे। एक बार एसएससी ने भी ये वर्ड पूछा है। तो देखिए रेंट एट, होल्ड फॉर टू, लेक्चर, शाउट एट, बीरेट अच्छा वर्ड है, क्रिटिसाइज, माउट ऑफ टू। तो ये फ्रेजेस हैं दो तीन, आपको ये भी ध्यान रखना, होल्ड फॉर टू, रेंट एट, ये सारे के सारे आपको न्यूज हेडलाइन में देखने को मिलते हैं, तो वहीं से मैंने ये लिए हैं। द काइंड ऑफ गाय हु हैरेंगे टोटल स्ट्रेंजर अबाउट पीसीबी लेवल इज व्हाइट फिश, ए हैरेंगे फ्रॉम द हेडमास्टर ऑन गुड बिहेवियर। तो मैंने क्या बोला? जो लंबा चौड़ा प्रभावशाली जो भाषण होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? हैरेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ड पे, अगर कोई है तो। प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब क्या आता है? ये एक एडजेक्टिव है। प्रिकेरियस का जो भी कोई भी वर्ड अगर
IOUS से एंड हो तो वो एग्जेक्टिव होता है, मतलब वो विशेषता बताता है। तो प्रिकेरियस का मतलब होता है कोई भी चीज जो खतरनाक हो, बहुत ज्यादा हानिकारक हो। नॉट सिक्योरली हेल्ड और इन पोजीशन, डेंजरसली लाइकली टू फॉल और कलेप्स। तो जो चीज बहुत ही एक खतरनाक स्थिति में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिकेरियस। ठीक है, प्रिकेरियस सिचुएशंस, तो ये वर्ड आपको ऐसे न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। अनसर्टेन, इनसिक्योर, अनप्रेडिक्टेबल, रिस्की, parlous, hazardous and dangerous are the different words which you can use for precarious. The lorry was lodged in a very precarious way with its front wheel hanging over the cliff. तो आप देख सकते हैं इसका यूजेस। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है डिनाइल। डिनाइल एक नाउन है, जब आप किसी चीज को नकारते हो। डिनाई से ये वर्ड बना है, आप डिनाई करते हो ना, DENY, तो उसी से नकारना या अस्वीकारना। द एक्शन ऑफ डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी अनट्रू। तो सरकार क्या है, डिनाइल कर रही है। अभी उसी आर्टिकल से आया था कि हम MSP को खत्म नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात को मानिए, हम जो है चीजों को आपको अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर किसान मानने को तैयार नहीं है। किसान क्या कर रहा है, उसको नकार रहा है। ठीक है, पर सरकार क्या कर रही है, सरकार उनको कह रही है कि आप इसको स्वीकारिए, हम सही बोल रहे हैं आपको, ऐसा हम नहीं कर। द एक्शन ऑफ डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी अनट्रू। ठीक है, अब मान लीजिए कोई नेता है, जैसे उस दिन राहुल गांधी जी ने कहा था कि जो वैक्सीन है वो कहीं और से बनी है। कुछ जो थे, कुछ धर्मपंथी जो थे, वो कह रहे थे कि इस वैक्सीन में जो है सुअर की चर्बी मिलाई गई है, वो मिलाई गई, तो उल्टा सीधा कहते हैं। ठीक है, तो सरकार उसको फिर सपोर्ट करती है, नहीं जी ऐसा नहीं है। सरकार उसको क्या है, डिक्लेयरिंग, किसी चीज को डिक्लेयर करती है, नहीं ये चीज सही नहीं है, अनट्रू है, मतलब इसकी सच्चाई नहीं है, तो उसको नकारना या अस्वीकार करना, उसे हम क्या कहते हैं, डिनाइल। कॉन्ट्राडिक्शन, रिफ्यूटेशन, एक रिफ्यूट वर्ड होता है कि इस चीज को नकारना या खंडन। रिब्यूटल, रेपुडिएशन, डिस्क्लेमर, नेगेशन या डिसेंट, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, आपके डिनाइल से जुड़े हुए वर्ड है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। शी शुक हर हेड इन डिनाइल। तो जब कोई नकारता ना, तो ऐसे सर हिला रहा होता है, तो शुक एक जो इसका थर्ड फॉर्म है शेक का, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आगे देखिए, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट वर्ड बहुत अच्छा है, ये आपका प्रेसिडेंट जो ये डोनाल्ड ट्रंप वाले आर्टिकल से मिला है वर्ड मुझे। ये एक नाउन है। इनकम्बेंट का मतलब होता है जो अधिकारी हो, जो किसी पद पर बैठा हो। ठीक है, तो जो इस समय ऑफिस में बैठा हो पद अधिकारी जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्बेंट बोलते हैं। ठीक है, द होल्डर ऑफ एन ऑफिस और पोस्ट, तो जो वर्तमान में जो है उस कुर्सी पे बैठा है, जो अधिकारी है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम्बेंट। तो होल्डर, बियरर, ऑक्यूपेंट। तो सी वॉज एन इनकम्बेंट इन द लास्ट इलेक्शन फॉर द ऑफिस सी होल्ड। तो जो क्या होना, इनकम्बेंट का मतलब जवाबदेही भी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। तो ये लास्ट वर्ड था। तो उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से जो है रोज आपके लिए सेशन डिजाइन करूँ, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा नया यूट्यूब चैनल है योर्स महबूब, आप यहाँ पे जाके जो है PDF ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे और भी बहुत सारा पेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा सेशन और बनाया जाए, तो आप मुझे बताइएगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप एडमिन को बताइए, जिससे क्या है कि हम आपके लिए और बेहतरीन सेशन डिजाइन करके समय समय पर लाते रहे, जिससे क्या है कि आपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको सेशन थोड़ा लंबा जोड़ा, आप कहते हो नहीं सर इसको थोड़ा कंसाइज कीजिए, आप एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट कीजिए, हमें यूजर्स नहीं चाहिए, तो मैं सेशन को छोटा भी करने को तैयार हूँ। हमें तो आपको चीज़ें सिखानी है। ठीक है, अभी आप किस तरीके से हजम करते हो, आप अगर डिटेल में चाहते हो, डिटेल में लोगे तो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे। अगर आपको चाहते हो नहीं सर हमें बस एग्जाम क्लियर हो जाए, हमें और कुछ नहीं ज़्यादा वो करना, तो फिर आपको हम बिल्कुल सिर्फ उसका मीनिंग बता के, तो फिर तो आधे घंटे के सेशन में मैं आपको 100 वर्ड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप बताना क्या। और आप द हिंदू की PDF भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपको इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें लगभग डेली 100 से ज़्यादा वर्ड होते हैं, वो मैं खुद बनाता हूँ। मेरा नाम रौनक भार्गव पे आप गूगल कर सकते हो, मेरा नाम आपको मेरे सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। तो वो PDF मैं खुद बनाता हूँ, और वैसा PDF आपको कोई भी जो है वेबसाइट नहीं देता, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नहीं देता, क्योंकि बना ही नहीं सकते, इतना बड़ा PDF है। सारे के सारे आर्टिकल में उसमें जो है उसको कवर करता हूँ, और एक एक वर्ड उसमें जो है जो मुझे लगता है कि जरूरी है, चाहे वो कोई न्यू रीडर है द हिंदू का, चाहे वो कोई एक्सपीरियंट है, सारे इसी तरीके से मैं उसको डिजाइन करता हूँ। लगभग 70-80, कभी कभी तो 100 से भी ज्यादा वर्ड उसमें हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं रौनक भार्गव आप सबसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे सेशन को देखने के लिए। फिर मिलते हैं दूसरे सेशन में। थैंक यू।